Hello students, how are you all? I hope you all are fine. My name is Khushbu Mamlani and I am going to teach you social studies. This is your social studies textbook. So you have to read while we read the chapter. Okay, so open your textbook. In that we are going to start with chapter 1. Chapter 1, the study of history. History means past events. Okay, open the book. I hope you have taken your book, you have opened it. So we will start reading. Okay, we will start understanding. So children, today we are going to start the first chapter of history. Okay, in social studies you will be studying this subject. Okay, in this subject, in social studies, there are 3 categories: history, geography and civics. Okay, history means the study of past, right? Geography is related to the surroundings, the earth, maps and all. And civics is related to rules, regulation, democracy and law. Okay, so in this chapter, the history part which you are going to study is of ancient period. Okay, you are going to study ancient period. So we are going to study history. In history we will study the first chapter, the study of history. Now children, I know you find it boring and you wonder why we need to study history. Okay, we study history to know our past. Okay, what was there in the past, to know our ancestors, and to understand present we need to know the past. Okay, so we need to study history and I will make sure that you don't find it boring, okay, anymore. You will find it interesting. Okay, so what is the meaning of the term history? History का मतलब क्या है? History means the study of past event, people and their way of living, their occupation, their food habits, okay, and all number of things we study about them, about past, about the people in the past. Okay, अभी आप बोलोगे पास्ट. यस, पास्ट यानी कि जो बीत चुका है, ठीक है, जो हो चुका है उसके बारे में हम पढ़ते हैं ना. आप सोचोगे कि हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, है ना, बट हमें इससे नॉलेज मिलता है. ओके, अभी हम रीसेंट जो होते हैं, रीसेंट मैटर्स होते हैं, वो तो हमें पता होते हैं, या तो हमें कोई बताता है या हमें पता होते हैं, या हमारे पास उसके सोर्सेज होते हैं, ठीक है. तो हमें इजीली पता है कि आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था. बट चिल्ड्रन, हमें क्या पता है कि आज से हज़ारों साल पहले क्या हुआ था, है ना, नहीं पता ना. तो ये सब हमें हिस्ट्री बताता है. हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें वो सब पता चलता है, ठीक है. सो लेट अस फाइंड आउट the more extensive meaning of history and all the things, okay, related to it. So history tells us about settlements, economy, society, their clothing, their food habits, their occupation, what games they played, which song they sang, did they dance, did what all things they did. Okay, so history completely पास्ट के इवेंट्स की स्टडी है. ओके, सो अब हिस्ट्री में, हिस्ट्री बहुत ही वास्ट है. ओके, इट इज़ टू लेंथी, राइट. तो हिस्ट्री को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. ओके, और वो कैटेगरीज है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, विच वी कैन से एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है. अब हम रीड करेंगे और हम डिटेल में समझेंगे. ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट.
Okay, first we will see meaning. Okay, have you ever wondered what India was like 100 years back? इंडिया कैसा था 100 साल पहले, 1000 साल पहले? हाउ डिड इंडिया अचीव फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल? हमें पता है कि वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, राइट? तो हम कैसे आज़ाद हुए, हमें फ्रीडम कैसे मिली? और जो फेमस मॉन्यूमेंट्स है, फेमस बिल्डिंग्स है, ठीक है, या आर्किटेक्चरल वर्क्स है, जैसे कि रेड फोर्ट है, गोल गुमास, गेटवे ऑफ इंडिया, अमर फोर्ट, ताजमहल एंड मैनी मोर, ये सारे मॉन्यूमेंट्स किसने बनवाए? हमें पता है, हमें पता है क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है? सो ये सारे सवाल, क्या हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री. Okay, so history is necessary not only for our general knowledge or we can say anything. History is needed to understand our present also. So what we learn from history? Okay, history can be defined as study of past. अभी past यानी कल, उसके पहले 10 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं लैक, मिलियंस और बिलियंस ईयर बिफोर. सो हिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज पास्ट, एंड पास्ट इज मेड अप ऑफ इवेंट्स दैट हैपन्ड एज अर्ली एज अ डे अगो. ठीक है, कल, जैसे कल क्या हुआ था, आपने क्या किया, वो आपकी हिस्ट्री है. ठीक है, सो आप जैसे हम आपकी हिस्ट्री काउंट करें कि जैसे आपने कल क्या किया, ठीक है, प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो, ठीक है, कल क्या किया आपने, फिर लास्ट ईयर आपने क्या किया, अभी आप जो स्टैंडर्ड में आए हो तो वो कैसे आए हो, ठीक है, तो पहले आप कहाँ थे, राइट? सो अ ईयर बिफोर इफ़ वी सी, और इफ़ वी सी कि योर 2 years बैक और 3 years बैक, और वी कैन से यू वर इन प्री स्कूल, राइट? जब आप केजी और प्ले स्कूल ये सब आपने अटेंड किया है. सो हाउ यू केम सो फार, तो ये सारा आपका हिस्ट्री है, राइट? सो हिस्ट्री कैन बी एज अर्ली एज अ डे अगो और मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में कल की बात हो सकती है, जो कल बीत गया है वो कल. फिर हिस्ट्री में 1 साल पहले, 10 साल पहले, हज़ारों साल पहले, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ था, वो सब कुछ हिस्ट्री है. अभी हिस्ट्री इतनी लंबी है तो हमें हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है. ओके, हिस्ट्री इज़ देन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अभी हिस्ट्री तब भी थी जब कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता था, जब किसी को लिखना नहीं आता था, उस टाइम की हिस्ट्री भी हमें थोड़ी बहुत पता चलती है, राइट? सो हिस्ट्री इज़ कवर्ड everything about past. All of us have a past. That means all of us have a history as well. मैंने आपको कहा ना, हम सबकी भी एक हिस्ट्री है. What we are today is because what we have done in the past. Okay, whatever your parents, grandparents and great grandparents, all that is your history. Okay, family history we can say. You will see that when you study the past, इट बिकम्स एन एक्साइटिंग जर्नी. ठीक है, जब आप पास्ट के बारे में समझोगे, ठीक है, जानोगे उसको, तो आपके लिए भी एक एक्साइटिंग जर्नी होगी. बाय स्टडिंग आवर पास्ट वी कैन लर्न हाउ आवर एंसेस्टर्स लिव्ड, ड्रेस्ड, एट एंड थॉट. ठीक है, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हमें डिटेल में पता चलता है कि हमारे फोर फादर्स, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज जो थे, वो कैसे रहते थे, उनकी लिविंग स्टाइल कैसी थी. ठीक है, फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर, व्हाट डिड दे ईट, हाउ डिड दे ड्रेस्ड, व्हाट डिड दे थॉट, ओके, व्हाट वाज द कंडीशन एट दैट टाइम. एवरीथिंग वी गेट टू नो. बाय लुकिंग एट आवर पास्ट एंड नोइंग अबाउट इट, वी आर एबल टू फाइंड आउट मोर अबाउट आवर सेल्व्स. कहीं ना कहीं हम भी
उनके वजह से आज यहाँ पर है. ओके, वी आर देयर. ओके, वी आर, हम बोल सकते कि हम उनके अंश है. ठीक है, तो हमें अपने बारे में भी पता चलता है. वी गेट टू नो वेयर वी केम फ्रॉम एंड द रीज़न फॉर आवर हैबिट्स एंड बिलीव्स. ओके, देयर इज़ अ साइंस in which we say that whatever our condition is, whatever we are, that is because of the genes. Okay, because of the DNA. So right from the beginning, if we see, if the history we are talking about, so then our belief, our thought process, our habits, our health and all is dependent on our ancestors. So we should know our story now, we should know our history. Okay, history records past events, places and people in a chronological order. It is by studying history that we get to know why and how certain things happened in the past. ठीक है, historical records in chronological order. ठीक है, chronological यानी क्या होता है? ठीक है, chronological यानी from the very beginning up till now. ठीक है, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, बहुत पहले से लेकर क्या क्या होता गया और अभी तक. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन दैट सीक्वेंस. इट इज़ बाय स्टडिंग हिस्ट्री दैट वी गेट टू नो वाई एंड हाउ सर्टन थिंग्स हैपेंड. कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब हमें हिस्ट्री से पता चलता है. इट ऑल्सो इन्फॉर्म्स अस as to why things happen in certain way. क्यों उस तरीके से तब चीज़ें होती थी, वो भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. ठीक है, देयर इज़ अ रीजनिंग, देयर इज़ अ लॉजिक एंड वी गेट टू नो ऑल दिस थिंग्स. ओके चिल्ड्रन, टर्न द पेज. ओके, नाउ आवर टॉपिक इज व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री. ओके, टू नो आवर हेरिटेज. ठीक है, टू नो आवर रिच हेरिटेज. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेरिटेज? हेरिटेज यानी हमारा रीति रिवाज, या जो हमारी जो एंसेस्टर थे वो क्या करते थे, उनका कल्चर क्या था. ठीक है, हमारे पास्ट में जो हमारे एंसेस्टर थे वो क्या फॉलो करते थे. ठीक है, सो टू नो आवर हेरिटेज. We learn about our rich heritage of our country and of world through the study of history. History के माध्यम से, हिस्ट्री के द्वारा ही हमें ये सब पता चलता है. The lifestyle of human communities, their belief, वो क्या मानते थे. ठीक है, उनका क्या विश्वास था. ठीक है, what did they do, their practices, their religious practices, or we can say their spiritual practices, their traditions, their customs and how this involved. ये हमारे रीति रिवाज, हमारे कस्टम्स क्या थे और अभी उसमें क्या क्या बदलाव आया है. what changes have now came on it, if we compare, can be understood when we study history. okay, history से हमें ये सब पता चलता है. History offers us the opportunity to understand how human society has evolved over the ages. ठीक है, over the time, over the ages, what all changes have been made. okay, क्या क्या बदलाव आ चुके हैं, क्या लोगों ने सिस्टम क्या चेंज हुई है, क्या टेक्नोलॉजी आई है, क्या रिवॉल्यूशन आया है, क्या कैसे हम मॉडर्नाइज होते गए हैं, सारा कुछ हमें हिस्ट्री से पता चलता है. ठीक है, चेंजेस जो है वो हमें फील होते हैं. सो द इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हु शेप द कोर्स ऑफ हिस्ट्री और आइडियाज़ दैट चेंज द वर्ल्ड्स व्यू कैन एनालाइज्ड. अभी हर एक टाइम पे, ओके, इन एवरी वी कैन से इन एवरी इवेंट there must be some leader or there must be someone who made change. okay, who started making changes, who discovered something or who invented something. तो वो जो हमारे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं कि जिनके वजह से थोड़े थोड़े चेंजेस आते गए और आज हम
जो लाइफस्टाइल, जो लैविश मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ऑल थैंक्स टू ऑल द इन्वेंटर्स एंड लीडर्स. However, history is made not only by important people. ठीक है, सी रिमेंबर, हिस्ट्री में सिर्फ वो लोग ही नहीं है, सब कोई है. ओके, सो हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट मेड not only by important people and events but also by common people. Okay, common people की क्या लाइफ थी, वो कैसे जीते थे, उनको क्या डिफ़िकल्टीज होती थी, what all everything we are studying. And seemingly non remarkable incidents. कोई इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनकी नोट बहुत ज़्यादा ली नहीं होती है, तो वो सब भी हम डिस्कवर करते हैं. ओके, यहाँ पर आपको एक इमेज दिया है, ठीक है, ये वाला. ठीक है, इस इमेज में आपको दिखाया है कि जो कुछ लोग हैं वो पूरा डिग कर रहे हैं, ग्राउंड को, पूरे सॉइल को डिग कर रहे हैं, और बहुत डिग करने के बाद उन्हें जो आपको दिख सकता है कि उनको स्केलेटन मिला है. ठीक है, उनको बोन्स मिले हैं. ओके, ऐसे काफ़ी हिस्टोरियंस, काफ़ी आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग जगह पर, अलग अलग साइट्स पे जाके एक्सकेवेशन करते हैं. एक्सकेवेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. वो वहाँ से जो फॉसिल है, जो लैंड है, सरफेस, उसको पूरा खुदवाते हैं. ठीक है, सो ओके, टू फाइंड आवर रूट्स. ठीक है, रूट्स, वी नो दैट कितना भी बड़ा प्लांट हो जाता है या कितना भी बड़ा ट्री हो जाता है, दैट इज़ ऑल ड्यू टू द रूट्स. ओके, बिकॉज रूट्स आर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, इट इज़ एब्जॉर्बिंग द वाटर. ओके, तो हम जो भी है आज, दैट इज़ ऑल ड्यू टू आवर एंसेस्टर्स, ड्यू टू द we can say the mankind in the past. So history touches all of us in some way or other. हम कहीं ना कहीं लिंक्ड है, हम कहीं ना कहीं रिलेटेड है हिस्ट्री से. ईच एंड एवरी थिंग दैट वी डू इज़ कनेक्टेड टू आवर पास्ट. हम जो आज करते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि जो हम पास्ट में जो होता था उससे. द स्टडी ऑफ पास्ट हेल्प अस टू फाइंड आवर रूट्स एंड अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट. ओके, तो जैसे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वास्ट है. ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी लिटिल कंसेप्ट, इट इज़ वास्ट कंसेप्ट, और इसी वजह से हिस्ट्री को डिवाइड किया है. ओके, देर आर 3 पार्ट्स, देर आर 3 पिलर्स इन विच द हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड. अब वो कौन से पार्ट्स है, कैसे पार्ट बनाए हैं उन्होंने? प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है और हिस्ट्री है. ठीक है, अभी प्री हिस्ट्री क्या है? ओके, व्हाट इज प्री हिस्ट्री? द पीरियड फॉर विच देर आर नो डॉक्यूमेंटेड रिटन रिकॉर्ड्स इज नोन एज प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री एक ऐसा टाइम था जब लिखावट में कुछ हमें मिला नहीं है. देर मतलब तब के लोग कुछ लिखते नहीं होंगे. देर मस्ट नो द राइटिंग मस्ट नॉट बी इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड. ठीक है, तो हमारे पास कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट या पेपर या इंस्क्रिप्शंस या कुछ भी हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज नहीं है. आर्कियोलॉजिकल excavations and the study of unearthed artifacts help us to learn about the events and the lives of people living in this period. अभी आप तो बोलोगे इसी एक ही लाइन में इतने सारे शब्द आ गए जो हमें समझ नहीं आते. सो आर्कियोलॉजिकल यानी मैंने आपको बोला था कि ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो एक्सकेवेशन करते हैं, यानी कि जो भी प्लेस होती है उसको डिग और वो लोग डिग करके फाइंड करते हैं. ओके, वो पूरे उसको खोद देते हैं ताकि नीचे से उनको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है. ठीक है, अभी ये जो चीज़ें हैं वो कोई वेपन हो सकता है, वो कोई टॉय हो सकता है, वो बोन्स हो सकते हैं, वो कॉइन्स हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसको ये लोग आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं. ठीक है, सो
बहुत सारे ऐसे सामान मिलते हैं, ऑब्जेक्ट मिलते हैं जिससे अभी हमें उनके लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलता है। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स जो होते हैं जिसकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है, वो सारा प्री हिस्ट्री में इंक्लूड होता है। नाउ द सेकेंड टाइप इज़ प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री यानी जिसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट या कोई रिटन सोर्स नहीं है। ठीक है, अब प्रोटो हिस्ट्री क्या है? दिस पीरियड स्टार्टेड व्हेन हिस्ट्री बिगेन टू बी रिकॉर्डेड। जब लोग तब कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाने लगे, कुछ ना कुछ लिखने लगे। बट रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पीरियड आर वेरी स्कैंट। बहुत ही कम रिकॉर्ड्स है। ठीक है, बहुत कम, वेरी लेस, इन वेरी लेस क्वांटिटी। A lot of what has been discovered is yet to be deciphered। और जो कुछ भी मिला है वो शायद ऐसी लैंग्वेज है या ऐसे कोड्स है जो अभी तक डिसिपर्ड नहीं हो पाए, यानी जो अभी भी समझ में किसी को नहीं आया है, डिकोड नहीं हो पाया है। ओके, डेसिफर्ड मीन्स इट इज़ नॉट डिकोडेड, इट इज़ नॉट अंडरस्टूड। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉल्स विद इन दिस पीरियड ऑफ हिस्ट्री। अभी प्रोटो हिस्ट्री यानी कि मिडिवियल हिस्ट्री, ओके, और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जो पीरियड है वो भी प्रोटो हिस्ट्री का एक पार्ट है, एक इवेंट है। ओके, अभी आप ये इमेज देख पा रहे हो। ओके, दिस इज़ द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी सिटी थी। ओके, देयर वर मैनी सिटीज़ लाइक कलिबंगन, रोजरो, like Lothal, Dholavira and lots many. We are going to study in this book again about Indus Valley in detail. ठीक है, ये एक साइट है जहाँ पर हमें बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं। यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ लिखावट भी मिली है, पर वो लिखावट कोई समझ नहीं पाया है। ओके, इट इज़ नॉट डिकोडेड। ओके, नाउ हिस्ट्री। This is the time when history began to be properly recorded and documented। यानी एक प्रॉपर स्क्रिप्ट है, एक प्रॉपर रिटन फॉर्मेट है। ये ऐसा टाइम है जबकि लोग रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए थे और वो रिकॉर्ड हमें समझ भी आते हैं। ठीक है, देयर आर रिकॉर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द इवेंट्स एंड द लाइफ्स ऑफ पीपल। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में भी आता है। ठीक है, हिस्ट्री जो भी है उसका एविडेंस जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट है वो हमेशा ऐसे एविडेंस के बेस पे ही हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। कि चिल्ड्रन, नेक्स्ट पेज। अब ऐसे कौन से सोर्सेज है जिसके वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है? तो हिस्टोरिकल सोर्सेज। द पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट लेफ्ट क्लूज लाइक कॉइन्स, डॉक्यूमेंट्स, फॉसिल्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो पास्ट में जो लोग थे, ठीक है, बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले, वो लोग तो चलो अभी नहीं है। ठीक है, और वो उनका जो भी था उसमें भी बहुत सारा कुछ चेंज है। ठीक है, वो साइट पे भी बहुत सारे चेंज हो गए, बट वो लोग ऐसे क्लू, ऐसी चीज़ें उनके पीछे हमें मिलती है जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब वो चीज़ें कौन सी है? ओके, व्हाट आर द क्लूज़? द क्लूज़ आर लाइक कॉइन्स। ठीक है, हमें सिक्के मिलते हैं। ओके, कॉइन्स, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हमें ऐसे कुछ पेपर्स या कुछ लेटर्स, यहाँ कहीं पर कुछ लिखावट मिल जाती है। फॉसिल्स, ठीक है, हमें फॉसिल्स मिलती है, या तो हमें बोन्स मिलते हैं, या तो हमें ऐसी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जिसकी वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फ्रॉम विच वी कैन स्टडी अबाउट द पास्ट। दिस मटीरियल्स आर कलेक्टिवली नोन एज। इन सारे मटीरियल्स को, ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्स, ओके, अभी हिस्ट्री के दो सोर्स हैं। ओके, वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ sources. Okay, the sources can be classified in two types, that is archaeological sources and literary sources. अभी archaeological sources क्या है? archaeological sources यानी कि remains जो हमें साइट पे मिलते हैं।
जब एक्सकेवेशन होता है, जब पूरा डिग आउट करवाते हैं, तब जो सोर्सेज मिलते हैं उसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। और लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं? जिसमें लिटरेचर हो, जिसमें राइटिंग्स हो, जिसमें डॉक्यूमेंट्स हो। ओके, सो ये लिटरेरी सोर्सेज है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम बोल सकते हैं कि हमें जो मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है, ओके, हमें जो हम बोल सकते हैं कि हमें जो कॉइन्स मिलते हैं, दैट मॉन्यूमेंट्स होते हैं। ओके, सो ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। और लिटरेरी सोर्सेज क्या है कि कुछ लिखावटें हमें उस टाइम की मिलती है, जिसको हम लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, ये दोनों हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि दोनों सोर्सेज के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है चिल्ड्रन, ठीक है बच्चों, अभी आज के लिए इतना ही। आपको ये पूरा रीड करना है। अगर आपको डाउट है तो आपको मुझे लाइव लेक्चर, हम जब लाइव आएंगे तब आपको हमें पूछना है। Okay students, I hope you understood the concept. You have to read page number 8 and 9 of your textbook. Okay, and you have to solve the objective questions in your textbook. Okay children, bye. Take care.